تیرا شکر و لشکروں کی خدا، آج اس خوبصورت وقت کے لیے خدا نے ہم سب کی زندگی میں بخش دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ آئیں خدا کی کلام پاک میں سے مقدس یسایہ کی کتاب کے ساتھ نکالیں، اس کا چیپٹر 43 43واں باب ہے، اس کی چند آیات مقدسہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس یسایہ کی کتاب اس کا 43واں باب، اس کی چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ بائبل میں سے 43ویں باب کی 7ویں آیت کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ہم اسی چیپٹر کی 21ویں آیت مقدسہ کی تلاوت کریں گے۔ ان دو آیات مقدسہ کی ہم تلاوت کریں گے۔ جی بیٹی، شاباش۔ دامن کے زندہ پاک کلام میں کچھ نہیں لکھا ہے، اور ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے، تو جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں نے ہی بنایا۔ اسی چیپٹر کی 21ویں آیت۔ دامن کے زندہ پاک کلام میں کچھ نہیں لکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ دامن کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے کے خدا مسیح سے ہم نے یسایہ کی کتاب 43واں باب اس کی 7ویں آیت میں ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا۔ 21ویں آیت میں پھر ہم نے پڑھا، میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کرے۔ ہاللیلویہ۔ ہر ایک کو بعض اوقات ہمارے ہاں یہ دستور ہوتا ہے صرف ایک شخص جو ہے وہ پرستش کرے یا دو کرے، لیکن خدا کی شکر گزاری جب ہمارے نوجوان بچے پرستش کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا سارا چرچ پرستش کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ صرف ایک یا دو نہیں، جب ہماری کوائر، ہمارے بچے جو گیت گاتے ہیں اور ہماری ساری جو کلیسیا ہے وہ گیت گاتی ہے، کیونکہ بائبل کا خدا چاہتا ہے کہ اس کی حمد یا اس کی پرستش، اس کی ستائش صرف ایک، دو، تین کوائر یا پادری صاحب نہیں، بلکہ بائبل کہتی ہے جن لوگوں کو میں نے بنایا اپنے جلال کے لیے، اور خدا توقع کرتا ہے کہ یہ سارے کے سارے میری حمد کریں۔ آمین۔ کبھی کبھی کئی خرادوں میں ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، جی پادری صاحب پوری دے بڑی دعا کرتی ہے، سپاہ میں کٹ کر رہے ہیں، منڈا دے دعا کرتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے، بی نہیں بھائی یاد رکھنا ہم سب کو چاہیے، ہم پر فرض ہے۔ آمین۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے خدا کی ستائش کریں اور کوشش کیا کریں۔ جتنے ہمارے بیٹے کوائر گاتی ہے، اور میں زیادہ تر دیکھتا ہوں کہ کلیسیا ہماری ساری کی ساری گاتی ہے، اور جب اس طرح دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے چرچز میں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور جہاں پر کوائر تو بڑے جوش سے گا رہی ہوتی ہے تو باقی جو ہے نا وہ کارٹون بن کے بیٹھے ہوتے ہیں چپ کر کے۔ کیا ہے اس طرح جس طرح ان کو شو کے لیے بنایا؟ بھئی یہ ان لوگوں کا دستور ہے، ہم سارے کے سارے اپنے خدا کو سجدہ کرنے آتے ہیں۔ آمین۔ ہماری زبانیں کھلنی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ ہم سب پر فرض ہے۔ میں الفاظوں کی طرف نہیں جاؤں گا، تھوڑا سا ٹائم بائبل کے لیے کہ ہم سب کے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی ستائش کریں۔ ہم سب کے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے خدا کی حمد کریں۔ فرض جب ہم زبور کی کتاب زبور 103 اس کی 20ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر فرشتوں پر بھی فرض ہے، جو آسمانی مخلوق ہے ان کے اوپر بھی فرض ہے، اور ان کو بھی کہا گیا کہ تم اپنے خدا کی حمد کرو۔
पहली बात, पहला पॉइंट, फरिश्तों पर भी फर्ज है कि वो अपने खुदा की क्या करें, सताइश करें, उसकी हम्द करें। और बाइबल में से ज़बूर की किताब ज़बूर 103 की 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदा उनके फरिश्तों उसको मुबारक कहो। और जब ज़बूर 148 की दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, उसके फरिश्तों सब उसकी हम्द करो, उसके लश्करों सब उसकी हम्द करो। सिर्फ जमीनी लोगों पर ही फर्ज नहीं है, बल्कि आसमानी लोग, आसमानी मखलूक भी जो है वो अपने खुदा की हम्द करती है, उनके ऊपर भी फर्ज है। आमीन, आमीन। नाश्ता करके आए सो, ठीक है, फिर आमीन की जान होनी चाहिए। हालेलुया, आमीन। फरिश्तों पर भी फर्ज है कि क्या करें, खुदावंद की हम्द करें। आमीन। और जब कोई फरिश्तों को नहीं छोड़ा गया, फरिश्तों को राय नहीं दी गई, तो हम कैसे बच सकते हैं? हम सबके ऊपर फर्ज है खुदा की हम्द करें। और दूसरी बात कि मुकद्दसीन पर फर्ज है कि वो खुदा की हम्द करें। आमीन। और ज़बूर 30 की 4थी आयत को तिलावत करते हैं। मुकद्दस ज़बूर की किताब 30वां ज़बूर है, उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदावंद की सताइश करो, उसके मुकद्दसों और उसके कुदस को याद करके शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। और कितनी अज़मत की बात है, कितनी बरकत की बात है कि मुकद्दसों के ऊपर फर्ज है कि वो अपने खुदा की हम्द करे। और ज़बूर 149 की 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सुनाए करें। बिस्तरे दे लेट के पुठे पुठे ख्याल ना सोचा, चुगलियां बखीलियां नहीं, खुदा दे काचवियों की मत करना। ते जो बिस्तरियां दे उत्ते भी लेटे ना ते की करे, खुशी दे नाल उन्हां दे दिल शुक्रगुजारी नाल भरे हो, वो शुक्रगुजारी से भरे हुए अपने खुदा की नगमा सुनाए करें। आमीन। तब हम मुकद्दसों की लिस्ट में सोते जागते हम अपने खुदा की मदद सुनाई करेंगे, तो तब मुकद्दसों की लिस्ट में शामिल होंगे। मुकद्दसों की लिस्ट में रहने, आमीन, रहने। बच्चे देर से गाल चाहिए लिस्ट से चलेगी। अगर इस लिस्ट से कोई निकल गया तो उसके लिए यही है, मौला मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। मुकद्दसीन को ही वो मुबारक कहा गया ना। और जलाल का बादशाह जब तख्त के ऊपर बैठेगा तो कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को ले लो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। आमीन। और मुकद्दसों के ऊपर फर्ज है, और फिर एक कौम पर नहीं कि एक कौम ही करे। और हम जब तीसरे पॉइंट को देखते हैं तो कौमों पर फर्ज है कि वो खुदा की हम्द करें। ज़बूर 117 उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस कहती है, ऐ कौमों सब खुदावंद की हम्द करो, ऐ उम्मतों सब उसकी सताइश करो। चाहे कोई किसी कौम, किसी कबीले से ताल्लुक क्यों नहीं रखता, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका है तो खुदा ने फूंका है। आमीन। तो फिर उसे चाहिए कि उसे जिंदा खालिक की, अपने बनाने वाले की हम्द करे। कहा गया, ऐ कौमों खुदावंद की हम्द करो, ऐ उम्मतों उसकी सताइश करो। कौमों पर फर्ज है, उम्मतों पर फर्ज है, और सबके ऊपर फर्ज है कि वो अपने खुदा की हम्द करे। और चौथी बात, बच्चों पर भी बास का लोग रायत कर देते हैं, ऐ बच्चे ने अभी पादरी साहब बड़े हो के करेंगे। बाइबल क्या कहती हमें सीखना है, बच्चों पर भी फर्ज है। और बाइबल जब मुकद्दस मत्ती की अंजील को पढ़ते हैं उसके 21वें बात की हम 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हम्द को काबिल कराया। आमीन। बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हम्द को काबिल कराया। कितनी अच्छी और खुशी की और बरकत की बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं छोटे छोटे हाथों से तालियां बजाते हैं, हालेलुया के नारे लगाते हैं, कहते हैं रब खुदावंद बादशाह है। आमीन। ये बरकत की बात है। और जब छोटे बच्चे करेंगे तो लिखा है, बच्चे की तरबियत उस राह पर कर
जिस पर उसने जाना है वो पूरा होकर भी नहीं हटेगा। कि पंजाबी चलते ने मुड्ढां दे बिगड़े कदी सौड़दे नहीं, ते जिन्हां नूं बचपन च ना आदत पई होए उन्हां नूं खिच खिच के खड़ो पे फिर मुश्किल हो जाता है। ते चंगी गल है बचपन तो ही खड़ो। अगर कोई इसके बावजूद भी अपने खुदा की हमद ना करे तो फिर एक बात है, जो चांद खुदा करेगी सो बनेगी। आप अपना फर्ज निभाएं, और मेरा ईमान है आप अपना फर्ज निभाएंगे तो खुदा आपकी बात सुनेगा। हालेलुया। बच्चों पर भी फर्ज है कि वो खुदा की हमद करे, और मेरे अजीज उस वक्त बच्चे करेंगे जब हम उनको साथ लेकर खुदा के घर आएंगे। ये हमारा आने वाला कल है, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को लेकर कोशिश करें, अपने बच्चों को लेकर बैठाएं साथ, ताकि वो भी हमारे साथ खुदावंद की हमद में शामिल हो। और जब ज़बूर 8वां और उसकी दूसरी आयत को पढ़ते हैं, तूने अपने मुखालिफों के सबब से बच्चों और शीरखारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे। आमीन। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो चाहता है कि बच्चों के मुंह के जरिया से अपनी कुदरत को जाहिर करे। और याद रखें, खुदा सिर्फ बड़ों का खुदा नहीं, खुदा बच्चों का भी खुदा है। खुदा सिर्फ जवानों का खुदा नहीं, खुदा बूढ़ों का खुदा भी है। हालेलुया। बच्चों पर, और फिर आगे जब हम 5वीं बात को पढ़ते हैं तो आला अदना अमीर गरीब के ऊपर फर्ज है। आज ये दस्तूर है, और हमद करे थे बीमार बंदा या गरीब बंदा, ते जिदे को सारा कुछ है ना वो बंदा आंदा चल फिर तो रब दी बड़ी खैर है, पाक साहब बड़ी खैर है। और खैर करने वाले दे हजूर झुकिया जा बंदिया, क्योंकि एक दिन सारियां खैरां मुक जानियां ने। अगर तू हमद ना कीती ते फिर तेरी कोई नहीं खैर। अगर तू खैर चाहता है ना, खैर तो ज़मीन के ऊपर भी बड़ी थी, जो हर रोज खुशी करता था लेकिन वो हमद नहीं करता था। तो जब मर गया तो उसकी खैर हुई, तब खैर नहीं हुई। पहला हो जाता बड़ी खैर है मेरे उत्ते नहीं है, बड़ी खैर है मेरे को सब कुछ है। साहब आंदा होगा सारा कुछ है मेरे को, मेरे उत्ते बड़ी खैर है, पर इत्थों तक की खैर नहीं। कभी कभी असी खैर को इत्थों तक की मेरे को अच्छी नौकरी है खैर है, मेरे को अच्छा घर है खैर है, मेरे को गड्डी मेरा बिजनेस है खैर है। भाई उसके मुतालिक लिखा है कि वो अमीर था। अगर अमीर था तो लिखा है कि अमीर जो है उसके पास मालो दौलत है, सब आसाइशें हैं तो अमीर कहा गया, लेकिन उसके पास खुदा नहीं था, बदनसीबी थी। वो अपने खुदा की हमद करने वाला नहीं था, लिखा हर रोज खुशी मनाता था। तो जब खुदा उसके पास नहीं, उसके घुटने खुदा के हुजूर नहीं झुकते, उसके होंठ और जुबान खुदा के लिए नहीं बोलती, तो फिर खैर नहीं। तो लिखा है आला अदना अमीरों गरीब पर। कभी कभी मेरे पास लोग आते हैं, रात दिन प्रेयर सेंटर में हजूम रहता है, तो लोग कहते हैं भाई साहब आप भी होइए ना ठीक, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ये बात ये लोग ठीक करो। एक जगह पे एक लड़के को जिगर का कैंसर है, तो एक जगह पे किसी को कहते हैं गया, तो वो कहते हैं भाई साहब ठीक हो ना तो थोड़े नाल ही रहेगा। वक्त उसमें रहे थे बीमार बंदा है, तो फिर इसका मतलब है सारे बीमार होते वक्त उस्मान है। और भाई वक्त उस्मान हो ताकि बीमार हो गई ना। जब आदमी की जान पे बनती है ना, तब आदमी सोचता भाई साहब जो कुछ बाइबल आती है मेरे को सुनाओ। तो जदों वो बिल्कुल ठीक होता है, आज जिस आदमी के जनाजे में हमने जाना है, तो मुझे पता चला है कि पल भर में वो चला गया, और मेरे नसीब वो एक प्रेयर वॉरियर था, एक अच्छा दोस्त था, एक कबील मेरे साथ फेलोशिप की किसी जमाना से। उनके बच्चे छोटे छोटे, मुझे वो अपना उस्ताद मानते, और अब वो बड़े हो गए, हमारी मिनिस्ट्री की मसरूफियत हो गई, हम कम मिलते, लेकिन एक वक्त विजिट पे वो मेरे साथ जाता, एक अच्छा प्रेयर वॉरियर। और जब मुझे खबर मिली कि उसके भाई से, तो उन्होंने, मैंने पूछा वजह क्या बनी, सबब क्या बना। उन्होंने कहा सर जी थोड़ा सा वक्त लगे, थोड़ा सा बीमार हुआ तो बंदा चला गया। बंदा तंदुरुस्त है ना, आंखें जो बीमार हो मांगो तो तोबा करा और पहले कर ले, कोई पता नहीं फिर बीमार होया तो पता मिला मिलना भी नहीं।
हमद का वेला मिलना भी है कि नहीं करते रहो सारे हमारे चले जाना। इसलिए जब ज़बूर की किताब ज़बूर 148 की 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखे ऐ ज़मीन के बादशाहों सब उम्मतों ऐ उमरा और ज़मीन के सब हाकिमों खुदावंद की हमद करो। आमीन। बादशाह हमद करे, उम्मतें हमद करें, उमरा हमद करे, हाकिम जो है वो खुदा की हमद करे। ये सब के ऊपर अदना आला फर्ज है कि वो खुदा जिंदा खुदा की हमद करे। लिखा है मुझे अपनी हयात की कसम है कि हर एक टुकड़ा मेरे हुजूर झुकेगा। हालेलुया। उसे झुकाना आता है तो खुशी की बात यह है कि खुशी से झुकना। ये नहीं होगा कि कोई ना झुके, उसे झुकाना आता है क्योंकि वही उसकी रान और पोशाक पर लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदा है। आमीन। अदना आला बादशाह उमरा हाकिम उनके ऊपर भी फर्ज है कि वो खुदा की हमद करें। और फिर जवानों और बूढ़ों पर भी जब ज़बूर 148 उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है ऐ जवानों और कमारियों, ऐ बूढ़ों और बच्चों सब खुदा के नाम की हमद करो क्योंकि सिर्फ उसी का नाम मुमताज है और उसका जलाल आसमान से बुलंद है। हालेलुया। किनको कहा गया? जवानों को, कवारियों को, बूढ़ों को, बच्चों को। क्या करें? पान खाएं, सिगरेट नोशी करें, गली के चौका में खड़े हो ना आप ही इबादत गए कि इबादत जान वाले ने भी तंग कर। नहीं भाई, यहां पर लिखा गया ऐ जवानों और कुंवारियों, ऐ बूढ़ों और बच्चों सब खुदा के नाम की हमद करो। सिर्फ उसी का नाम मुमताज है, उसका जलाल जमीन आसमान से बुलंद है। और फिर सातवीं आखिरी बात करना चाहता हूं, पूरी कायनात के ऊपर फर्ज है कि वो खुदा की हमद करे। ज़बूर 150 उसकी 6वीं आयत देखिए, हर मुतनफ्फिस खुदावंद की हमद करे और खुदावंद की हमद करो। आमीन। हर मुतनफ्फिस जो कुछ है, सारी कायनात जिसके अंदर जिंदगी का दम है, जो खुदा ने बनाया है। और यहां तक कहा गया कि पहाड़ों, टीलों, वादियों, पानियों, क्या करोगे? खुदावंद की हमद करो। आमीन। और मैं हर चीज को खुदावंद की हमद करने का हुक्म देता है वो, इनमें आसमान, बुलंदियां, फरिश्ते, लश्कर, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, अजदहा, गहराओं, आग, ओले, बर्फ, कोहर, तूफानी हवाएं, पहाड़, टीले, फलदा दरख्त, देवदार, जानवर, परिंदे, चुपाए और रेंगने वाले जानवर और सब परिंदे सब शामिल हैं। और कहा गया कि हर मुतनफ्फिस खुदा की हमद करे। आमीन। मैं कहता हूं मुबारक वो लोग हैं जिनको हमद करने का मौका मिल जाता है। हालेलुया। बेटा इस वक्त को कभी जाया ना करें, जाया ना करें। और हमारी खुशनसीबी है कि हमें खुदा की हमद करने का मौका मिला। ये बाबरकत वक्त होता है। बड़े अदब से आंखें बंद कीजिए और सर झुकाइए, अपने खुदा से कहिए कि खुदा मुझे फजल दे कि मैं हर पल आपको मुबारक कहूं। वो प्रेज़ गॉड। आंखें बंद कीजिए और दुआ मांगिए आपकी सलामती। जी बात